کینیا میں قتل ہونے والے معروف پاکستانی صحافی ارشد شریف کے حوالے سے ایک خصوصی تحقیقاتی رپورٹ میں بی بی سی کا کہنا ہے کہ اس بے ایمانہ قتل کی منصوبہ بندی کینیا سے باہر کی گئی اور اس پر عمل درآمد کینیا میں ہوا۔ یاد رہے کہ ارشد شریف 23 اکتوبر 2022 کی رات کینیا کے علاقے مگاڈی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کی موت کو تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہیں، مگر پاکستان اور کینیا میں جاری اس ٹارگیٹڈ قتل کی تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آنے والی معلومات بظاہر اس کیس کو مزید پیچیدہ اور گمبھیر بنا رہی ہیں۔ بی بی سی کی ٹیم کینیا میں ہونے والی تحقیقات میں پیش رفت سے متعلق جاننے کے لیے نیروبی پہنچی اور اس کیس سے جڑے مختلف کرداروں سے بات چیت کی۔ بی بی سی کی ٹیم نے جہاں کینیا میں اعلیٰ عہدیداروں کے انٹرویو کیے، وہیں اس کی تحقیقات سے منسلک افسران، فائرنگ رینج اور فارم ہاؤس کے ملازمین اور فائرنگ کے مقام کی قریبی آبادی کے علاوہ بعض دستاویزات تک رسائی بھی حاصل کی تاکہ اس کیس میں پیش رفت کی معلومات جمع ہو سکیں۔ یاد رہے کہ دھمکیاں ملنے کے بعد ارشد شریف نے خیبر پختونخوا حکومت کی مدد سے پشاور ایئرپورٹ سے دبئی کا سفر کیا تھا، جہاں انہوں نے 10 دن قیام کیا۔ ارشد شریف 20 اگست کو دبئی سے نکلے تو ان کے پیچھے کینیا کا آن ارائیول ویزا تھا۔ یہ ویزا انہیں نیروبی میں مقیم پاکستانی بزنس مین وقار احمد کے دعوت نامے کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ وقار احمد کے پاکستان اور کینیا کے تفتیشی اہلکاروں کو دیے گئے بیانات کے مطابق اس دعوت نامے کی وجہ اے آر وائی کے سینئر عہدیدار اور چینل کے مالک سلمان اقبال کے کزن مرزا وسیع کو بتاتے ہیں، جو ان کے مطابق ان کے قریبی اور پرانے دوست تھے، اور مرزا وسیع نے ہی ارشد شریف کے لیے دعوت نامہ بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ کینیا کے مقامی افراد اور سرکاری اہلکاروں کے مطابق وقار احمد اور ان کے بھائی خرم احمد کینیا میں طویل عرصے سے مقیم ہیں اور یہاں پراپرٹی تعمیرات کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ اس کاروبار کے علاوہ وہ اسلحے کی فروخت کا کام اور کووینیا ایموڈیم نامی فائرنگ رینج کی ملکیت بھی رکھتے ہیں۔ اس نجی فائرنگ رینج میں فائرنگ کی تربیت دی جاتی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس کیس سے منسلک متعدد افراد نے دعویٰ کیا کہ وقار احمد کو کینیا اور پاکستان کے مقتدر حلقوں تک رسائی حاصل ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ویل کنیکٹڈ ہیں۔ ارشد شریف 20 اگست کو کینیا کے دارالحکومت نیروبی پہنچے اور پھر 2 ماہ تک وہ وہیں رہے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق ارشد شریف وقار احمد کے بھائی خرم احمد کے ہمراہ 22 اکتوبر کی رات نیروبی سے مگاڈی کی جانب روانہ ہوئے۔ مگاڈی نامی علاقہ نیروبی سے تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کینیا کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک ہے اور یہاں کی آبادی 5000 نفوس پر مشتمل ہے۔ کم آباد اور انتہائی گرم ہونے کی وجہ سے یہاں لوگوں کی آمد و رفت کافی کم رہتی ہے۔ یہاں سے ایتھوپیا کی سرحد کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مگاڈی کو ایک اور بات منفرد بناتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس علاقے کی ملکیت ایک معروف انڈین نجی کمپنی ٹاٹا کے پاس ہے۔ اس علاقے میں وقار احمد کی ملکیتی کووینیا ایموڈیم نامی فائرنگ رینج بھی واقع ہے۔ تقریباً 2100 ایکڑ پر محیط اس فائرنگ رینج میں سپورٹس، ہنٹنگ، نشانہ بازی اور دیگر سہولیات بھی موجود ہیں، جبکہ یہاں کیمپنگ کے انتظامات کے علاوہ گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹ بھی ہیں۔ کووینیا ایموڈیم کے مالک اور ارشد شریف کے میزبان وقار احمد امریکی حکومت کے ساتھ معاہدے کے تحت اس فائرنگ رینج میں امریکی انسٹرکٹر کے ذریعے اسپیشل تربیت فراہم کرتے ہیں۔ ارشد شریف 22 اکتوبر کی رات مگاڈی میں کووینیا ایموڈیم پہنچے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 23 اکتوبر کی صبح ارشد شریف نے وقار احمد اور خرم احمد کے ہمراہ ناشتہ کیا اور اب تک کی ہونے والی تفتیش کے مطابق دن کا باقی حصہ خرم احمد کے ساتھ گزارا۔ اس رات وقار احمد نے وہاں موجود امریکی انسٹرکٹر کے اعزاز میں ایک ڈنر کا اہتمام کیا اور ارشد شریف سمیت وقار کی اہلیہ خرم اور ان کی اہلیہ، جبکہ ایموڈیم کے شریک مالک جمشید بھی اس ڈنر میں موجود تھے۔ خرم احمد نے کینیا میں پولیس حکام کو بتایا کہ اس رات وہ ارشد شریف کے ہمراہ 8:30 بجے ڈنر سے فارغ ہوئے اور اپنی سفید رنگ کی لینڈ کروزر میں نیروبی کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دوران علاقے میں ایک مرسیڈیز کی چوری اور اغوا کی اطلاع پولیس کو موصول ہوئی اور پھر ایموڈیم کے قریب واقع پولیس کے جنرل سروس یونٹ یعنی GSU کے اہلکاروں نے ایموڈیم کو جاتی کچی سڑک پتھروں کے ذریعے بلاک کی تاکہ چوری یا اغوا ہونے والی مرسیڈیز گاڑی کو بازیاب کروایا جا سکے۔ جب ارشد شریف اور خرم احمد کی گاڑی یہاں سے گزری تو فائرنگ کے واقعے میں ارشد شریف کو سر اور سینے میں 2 گولیاں لگیں اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ خرم احمد نے اپنے بھائی وقار اور پھر جمشید کو فون پر فائرنگ
की इत्तला दी। इस दौरान उनकी गाड़ी का टायर फट चुका था, मगर वो अपने भाई के मशवरे के मुताबिक यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़े जमशेद के मिल्कियती टंगा फार्म हाउस पहुंचे। कीनिया की पुलिस और पाकिस्तानी तफ्तीशकारों को दिए गए बयान के मुताबिक वक़ार अहमद ने एयर भाई के मिर्जा वसी और फिर सलमान इकबाल से भी बात की और अरशद शरीफ की हलाकत की खबर उन तक पहुंचाई। बाद अज़ा वक़ार अहमद और उनकी अहलिया जमशेद और फार्म हाउस से मुंसलिक दीगर लोग भी यहाँ आए और फिर पुलिस भी इस फार्म हाउस में पहुंची। अरशद शरीफ की डेड बॉडी को यहाँ से मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया और इसके बाद पाकिस्तान खबर पहुंचाती गई। वक़ार अहमद मैयत के हमरा मुर्दा खाने तक गए, जबकि खुर्रम अहमद जमशेद के हमरा नैरोबी चले गए। इस मौके पर पुलिस ने उसे गलती करार देकर खुर्रम से माफी मांगी और बात खत्म हो गई। तफ्तीशकारों के मुताबिक ये कहानी यहाँ तक बहुत सादा सी नजर आती है, लेकिन इस कहानी में उस वक्त मोड़ आया जब पुलिस ने पहले इसे गलत शनाख्त के नतीजे में होने वाली हलाकत करार दिया और बाद अज़ां ये बयान दिया कि गाड़ी से GSU एहलकारों पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई। BBC ने इस वाक़े के फौरन बाद कीनिया में रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजात और पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट का तफसीली और तकाबली जायजा लिया और ऐसे कई अफराद से बराह रास्त बातचीत की जो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं या इस वाक़े से बिलवास्ता या बिलावास्ता मुंसलिक हैं। इन तमाम मुलाकातों और दस्तावेजात के बाद हम आपको वो तज़ादात बताएंगे जो तहकीकात में सामने आए हैं और इन सवालों से भी आगाह करेंगे जो इन बयानात और रिपोर्ट्स के बाद जवाब तलब हैं। BBC टीम कीनिया में उस पुलिस स्टेशन भी पहुंची जहां वो गाड़ी मौजूद है जिसमें अरशद शरीफ को निशाना बनाया गया। पुलिस स्टेशन में मौजूद अरशद शरीफ की गाड़ी की अगली नशिस्त पर उनके खून के अलावा सर के बाल अभी भी चिपके हुए हैं। इस रात अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे थे। उनमें से एक GSU का है जो कीनिया पुलिस का पैरा मिलिट्री यूनिट है और इसका काम मुल्क में किसी किस्म की बदनज़मी, पुरतशद्दुद मुजाहिरों और इंतशार को काबू करना है। GSU के साबिक अहलकार जॉर्ज मसालमी के मुताबिक यहाँ दस्तों की तैनाती के लिए हुक्म इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर से आता है और आइन के तहत हुकूमत की इजाज़त के बगैर उनकी तैनाती नहीं की जाती। इसके अलावा किसी भी मौके पर तैनाती के हवाले से उनके दस्तों की तादाद और सरबराही से मुतालिक भी कवानीन मौजूद हैं। एमोडेम कोविनिया की जानिब जाती एक कच्ची सड़क पर यह वाक़या पेश आया। हमें एमोडेम के इस हिस्से से जाए वकू तक पहुँचने में तकरीबन 25 मिनट लगे। ये पथरीला और गैर हमवार रास्ता है जहाँ गाड़ी की रफ्तार एक हद तक ही रखी जा सकती है। वो मकाम जहाँ रोड ब्लॉक किया गया था दरअसल एक खुश्क नाले की गुजरगाह है और यहाँ पानी के बहाव के लिए सड़क के नीचे 2 बड़े पाइप नस्ब हैं। इन्हीं के ऊपर सड़क पर पत्थर रखकर इसे ब्लॉक किया गया। यहाँ GSU के 4 एहलकार तैनात थे जिनमें से एक गाड़ी का ड्राइवर था। इन एहलकारों की सरबराही चीफ इंस्पेक्टर यूटा जोसेफ कर रहे थे और इनके साथ 2 सिपाही थे। इन तमाम अफराद के पास हथियार मौजूद थे। BBC को मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक GSU के एहलकारों ने इस मामले की तफ्तीश करने वाले पुलिस एहलकारों को बताया कि यूटा जोसेफ नाले के बाएं जानिब खड़े थे, जबकि दोनों सिपाही इनसे कुछ फासले पर इस नाले के दाएं जानिब खड़े थे। मौके पर मौजूद एहलकारों ने पुलिस को बताया कि जब अरशद शरीफ की गाड़ी आई तो यूटा जोसेफ ने इन्हें रुकने का कहा और फ्लैश लाइट का इस्तेमाल भी किया, मगर वो नहीं रुके। गाड़ी ने पत्थरों का बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की और इसी दौरान गाड़ी से उन पर फायरिंग भी हुई। फायरिंग से नाले के दाएं जानिब खड़े सिपाही में से एक को गोली लगी। उनके मुताबिक गोली लगते ही वो नाले की जानिब भागे और वहां नस्ब एक पाइप में छुप गए। उन्होंने पुलिस हुकाम को बताया कि वो सख्त तकलीफ में थे। वहां मौजूद दूसरे एहलकार ने दावा किया कि वो भी अपने साथी के पीछे नाले में चले गए और इसी दौरान गोलियां चलने की आवाज़ें आती रहीं। उनके मुताबिक जब वो बाहर निकले तो गाड़ी जा चुकी थी और इसका पीछा करने के बजाय हमें ये हुक्म दिया गया कि जख्मी साथी को ट्रेनिंग कैंप ले जाएं ताकि इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा सके। ताहम इस वाक़े के तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद GSU के इन एहलकारों की जानिब से दिया गया बयान मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम को इन एहलकारों ने मुख्तलिफ पोजीशंस का बताया है। उनके मुताबिक जब इन्हें गाड़ी की आमद की इतला मिली तो वो घात लगा कर बैठ गए। इनके मुताबिक ये दोनों सिपाही नाले में नस पाइप के साथ घात लगा कर बैठ गए और जब गाड़ी पहुंची तो उन पर फायरिंग की गई और इसी वजह से उन दोनों एहलकारों ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग की टाइमिंग समझने के लिए BBC की टीम ने न सिर्फ मुख्तलिफ दस्तावेजात का जायजा लिया बल्कि इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात भी की। जब तहकीकात से जुड़े एक सरकारी अफसर ने यह बताया कि इन्हें 9:36 पर अफसराने वाला की तरफ से मगाडी में फायरिंग की इतला और वहां पहुंचने का हुक्म मिला तो महज 6 मिनट में फायरिंग की इतला और टीम की तैनाती के बारे में हुक्म कैसे मिल सकता है। लेकिन
आगे चलकर अंदाजा हुआ कि इस केस से मुंसलिक हर शख्स का बयान दूसरे से मुख्तलिफ है। सबसे पहले खुर्रम हैं, जिनके मुताबिक वो रात 8:30 बजे अरशद शरीफ के हमरा कुविनिया डैम से निकले और रात 9:30 पर फायरिंग का वाकया पेश आया। किनिया की पुलिस को भी खुर्रम अहमद, इनके भाई वकार अहमद और GSU के एहलकारों ने इब्तिदा में यही टाइम बताया, लेकिन इन सब के बयानात का बारीकी से जायजा लें तो पता चलता है कि हर किसी का बयान मुख्तलिफ है। खुर्रम अहमद के मुताबिक फायरिंग 9:30 पर हुई। उनके भाई वकार अहमद के मुताबिक खुर्रम ने उन्हें 9:20 पर एक फ़ोन कॉल के जरिए फायरिंग की इतला दी। GSU के मुताबिक फायरिंग 9:45 पर हुई, जबकि तहकीकात करने वाले एक पुलिस अफसर के मुताबिक इन्हें 9:36 पर फ़ोन करके बताया गया कि मेगाडी में फायरिंग का वाकया पेश आया है। लेकिन BBC ने इस वाक़े के मकाम से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइविंग पे वाक़े मसाई कबीले के चंद अफराद से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इन्हें इस रात फायरिंग के बारे में क्या याद है। BBC से 2 ऐसे अफराद ने बात की जो इस वाक़े के वक्त ना सिर्फ इस सड़क से गुजरे बल्कि इन्हें फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी, मगर इनके औकात यकसर मुख्तलिफ हैं। इनमें से एक शख्स नफ्ताली वशीरा ने BBC को बताया कि उस रात उन्होंने रात 10:30 से 11 बजे के दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनी। ये फायरिंग बस चंद सेकंड के लिए हुई। BBC से इस रात उस फार्म हाउस पर काम करने वाले एक मुलाजिम ने भी बात की। उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो इस रात एमोडेम कोविनिया में मौजूद थे। अरशद शरीफ और खुर्रम अहमद रात 10 बजे तक फार्म में मौजूद थे और ये गालिबन 10 बजे का वक्त होगा जब वो दोनों वहां से निकले। अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े के फौरन बाद GSU के एहलकारों ने एक तहरीरी बयान में तहकीकाती इदारों को अपने असलहे से फायरिंग की तफसील बताई। कमांड करने वाले अफसर योटा जोसेफ ने कहा कि उन्होंने पहले गाड़ी से एक फायर की आवाज़ सुनी और इसके बाद उन्हें अपने साथी की चीख सुनाई दी। फिर इसके दोनों साथियों ने, जो इनके बकौल नाले के दूसरी जानिब खड़े थे, फायरिंग शुरू कर दी। योटा जोसेफ ने कहा कि उन्होंने खुद कोई फायर नहीं किया और इनके असलहे में गोलियां पूरी हैं। उनके मुबैना तौर पर जख्मी होने वाले साथी ने अपने इब्तिदाई बयान में कहा कि इन्हें एहसास हुआ कि इनका हाथ सुन हो चुका है और इन्हें गोली लगी है, तो वो भागकर नाले में बने पाइप में छुप गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने भी अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग नहीं की थी। उनके तीसरे साथी का बयान कदरे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि उन्होंने फायरिंग नहीं की और अपने साथी के पीछे भागकर वो पाइप में छुप गए। इस दौरान इन्हें गोलियां चलने की आवाज़ें आती रहीं। अलबत्ता आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने चंद फायर किए, मगर इन बयानात से मुख्तलिफ बयान पाकिस्तान की तहकीकाती टीम को दिया गया। अगरचे पाकिस्तानी टीम इस ज़ख्मी एहलकार तक रसाई हासिल नहीं कर पाई, ताहम अपने बयानात में इन एहलकारों ने कहा कि योटा जोसेफ ने फायरिंग नहीं की थी। अलबत्ता ज़ख्मी होने वाले सिपाही एक हाथ से ही गाड़ी पर फायरिंग करते रहे, जबकि दूसरे सिपाही ने भी कहा कि उन्होंने कई गोलियां फायर की। सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र पर लगी तमाम गोलियों के निशान दाएं जानिब से हैं। सिर्फ 2 गोलियां ऐसी हैं जो गाड़ी के पीछे शीशे पर हैं और तहकीकात के मुताबिक अब तक यही समझा जा रहा है कि इन दोनों में से एक गोली अरशद शरीफ के सर पर लगी। अरशद शरीफ की हलाकत उनके सर और सीने में लगने वाली 2 गोलियों से हुई, लेकिन हैरत की बात यह है कि अरशद शरीफ की सीट की पुष्ट पर इस गोली का कोई निशान मौजूद नहीं जो इनके सीने में लगी। गाड़ी में लगने वाली ज़्यादातर गोलियां लोअर एंगल से मारी गईं, जबकि कीनियन पुलिस का दावा है कि इन्हें गाड़ी के अंदर से एक गोली का खौल मिला है। खून के छींटे गाड़ी के पिछले दरवाजे तक पहुंचे हैं, मगर ड्राइवर की सीट पर किसी गोली का निशान है, ना खून का कोई धब्बा। इस केस से मुंसलिक एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट के मुताबिक गाड़ी के बाहर के हिस्से पर मौजूद गोलियों के निशानात से पता चलता है कि फायरिंग करने वाले अफराद लेटे हुए थे या सड़क की सतह से नीचे बैठे हुए थे। अगर GSU के एहलकारों की बात मान ली जाए कि गाड़ी के आगे बढ़ने के बाद पीछे खड़े योटा जोसेफ ने कोई फायर नहीं किया, तो गाड़ी के पीछे शीशे पर मौजूद गोलियों के 2 अहम निशानात के बारे में ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं कि ये फायरिंग किसने की। कीनिया में इन तहकीकात से मुंसलिक बाज़ अफसरान के मुताबिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट समझते हैं कि ये 2 गोलियां बहुत करीब से चलाई गईं और ऐसे वक्त में चलाई गईं जब ये गाड़ी रुकी हुई थी या बहुत आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार में चल रही थी। अगर अब तक की तहकीकात में मुख्तलिफ तफ्तीशकारों को मुख्तलिफ मौक़ों पर दिए गए बयानात का तफसीली जायज़ा लिया जाए, तो फायरिंग के औकात कार और GSU के एहलकारों की पोजीशन के बाद सबसे बड़ा तजाद अरशद शरीफ को मुर्दा हालत में सबसे पहले देखने वाले अफराद के बयानात में है।
DCI के एक एहलकार के मुताबिक यही वजह है कि अब पुलिस इस एंगल से भी तहकीक कर रही है कि कहीं अरशद शरीफ रोड ब्लॉक तक पहुंचने से पहले ही कत्ल तो नहीं हो चुके थे। अरशद शरीफ की डेड बॉडी खुर्रम अहमद के बाद सबसे पहले उस फार्म हाउस के गार्ड जोसेफ ने देखी जो गेट खोलने आए ताकि खुर्रम गाड़ी फार्म हाउस में दाखिल कर सके। उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि खुर्रम बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मुझसे पानी मांगा और फिर फार्म हाउस के अंदर चले गए। वो उस वक्त बाहर निकले जब इनके अहले खाना वहां पहुंचे। जोसेफ के मुताबिक जब इन्हें खुर्रम नजर नहीं आए तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद गाड़ी में देखेंगे ताकि इसे अंदर ले जा सकें। उनके मुताबिक वो नहीं जानते थे कि गाड़ी में कोई और होगा। ये शायद 10:20 का वक्त होगा। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। मैंने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स मुर्दा हालत में पड़ा था। मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसका खून जम चुका था और वो मरा हुआ था। मैं घबरा गया और दरवाज़ा बंद करके अंदर भागा ताकि खुर्रम से पूछ सकूं कि ये कौन है, मगर खुर्रम वहाँ मौजूद नहीं था। मैं इसके बाद भागकर अपने कमरे की तरफ आ गया और उस वक्त बाहर निकला जब गेट पर वकार अहमद और दीगर की कारें पहुंची। BBC टीम के मुताबिक उनसे पूछा कि क्या अरशद शरीफ के जिस्म से खून बह रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, खून बह नहीं रहा था, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका था। यहाँ पहुंचने वाले DCI के अफसरान ने भी यही बयानात दिए कि जब वो फार्म हाउस पहुंचे तो इनके जिस्म पर खून जमा हुआ था। लेकिन खुर्रम अहमद के बयानात मुख्तलिफ हैं। उनके पुलिस को दिए गए इब्तिदाई बयान के मुताबिक आधे घंटे के सफर के दौरान अरशद शरीफ सांस ले रहे थे और इनके जिस्म से खून बह रहा था। इस दौरान यानी फार्म हाउस पहुंचने से पहले ही वकार अहमद पुलिस इंटेलिजेंस और ARY के मालकान को अरशद शरीफ की हलाकत की तस्दीक कर चुके थे। वकार अहमद के तफ्तीशकारों को दिए गए बयान के मुताबिक वाक़े के बाद अगले 20 मिनट में उनकी सलमान इकबाल से पहली बार बात हुई और उन्होंने अरशद शरीफ की मौत की तस्दीक की। लेकिन सलमान इकबाल के पाकिस्तानी तफ्तीशकारों को दिए गए बयान के मुताबिक उन्होंने 3 से 4 घंटे के बाद वकार से पहली बार बात की। इस रात वकार अहमद के फार्म हाउस पर डिनर अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स के एजाज में दिया गया। यहाँ 6 अमरीकी एहलकार मौजूद थे, मगर इनमें से कोई भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि कीनिया की पुलिस के मुताबिक इन्हें ये इल्म ही नहीं कि वो कौन थे और अब कहाँ हैं। कीनिया के मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी जॉर्ज मिसालमी के मुताबिक ऐसा लगता है कि इस कत्ल की मनसूबाबंदी कीनिया से बाहर की गई और इस पर अमल दरामद यहाँ हुआ, और ऐसा मुमकिन नहीं कि कीनिया की हुकूमत या GSU में किसी को इसका पता ना हो। यहाँ कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जिसे इल्म था कि क्या हो रहा है। इस वाक़े की जिस अंदाज में तहकीक की जा रही है, इस पर भी कई सवालात उठते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में किसी को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा और असल कातिलों तक कोई नहीं पहुँच सकेगा। कुछ ऐसे ही खदशात का इजहार कीनिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओरंगो ने किया है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कीनिया में मावराए अदालत कत्ल और पुलिस को बतौर कातिल खरीदने के केसेस में काफ़ी इजाफा हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है। लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल और फिर इस मामले की तहकीकात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे इनके लिए पाकिस्तान में ज़मीन तंग की गई और इन्हें पहले दुबई और फिर कीनिया आना पड़ा और यहाँ उनका कत्ल कर दिया गया, जो बज़ाहिर ऐसे ही वाक़यात की कड़ी नज़र आती है जो इससे पहले भी कीनिया में होते रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।